Uh, Namaskar. With the permission of Honorable Vice Chancellor, sir, now we will start this event formally. Honorable Professor Nageshwar Rao, sir, Vice Chancellor, IGNOU, our respected guests, the Bhishma Pitama of Media Education, Professor J.S. Yadav, former Director, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, the source of inspiration and learning for an entire generation of Hindi journalists, Shri Kamar Wahid Naqvi sir, former editorial director, Aaj Tak, India Today Group. Professor Jayashree Jetwani ji, former professor, Indian Institute of Mass Communication. Shri Alok Verma, editor, News, New Delhi. And Dr. Deepak Gupta, Senior Strategic Communication Advisor, UN, Asia Pacific. The teachers and officers of IGNOU who are watching this program, our students and other viewers who are connected with us through different platforms of social media platforms of IGNOU. On behalf of the School of Journalism and New Media Studies, I welcome you all to this virtual event. Today we are here for the national launch of the specialized programs of School of Journalism and New Media Studies, IGNOU. Before Professor O.P. Deval, for welcome of our Honorable Vice Chancellor, sir, with a plan. Sir, Ravi. Now I request our Honorable Vice Chancellor, sir, for welcome to our respected guests with a symbol. It's a symbolic welcome to our guests. Through director. Huh? Sir, this plant will be the symbol of blessings of our respected guests, and we will keep it and nurture it in our school. Now, I would like to invite Professor K.S. Arul Selvan, Director, School of Journalism and New Media Studies, for his welcome address. Sir. Good evening to all. Honorable Vice Chancellor, sir, distinguished guest speakers, directors, heads of division, colleagues, friends, and dear participants. I, on behalf of the school, welcome you all to this program. My special welcome and thanks to distinguished guest speakers, Professor J.S. Yadav, Sri Kumar Vaid Naqvi sir, Professor Jayashree Jetwani, Sri Alok Verma, and Dr. Deepak Gupta for honoring this program with their presence. Earlier in the olden days, we used to have one television channel and that broadcast all types of programs. However, in the present day, we have channels for dedicated topics like news, sports, entertainment, travel, etc. Similar the scenario for other media outlets, newspapers, magazines, radio, and all. More importantly, each one of us can broadcast or stream or post messages within the country or across the globe. Media environment has changed a lot. These changes needs to be incorporated, reflected in the media training. Accordingly, the School of Journalism and New Media Studies have addressed the changes through the launch of specialized academic programs.
the areas of journalism, electronic media, digital media, development journalism, and in advertising. IGNOU is a pioneer in open and online education. In India, school is following the footstep of the larger mandate of the university to offer the high quality academic programs in the emerging fields. And more importantly, these programs are affordable to many learners. Change and transformation are the important milestones and indicators of growth. The visionary leadership determine the speed of this growth. Some years back, the school had few diplomas and one certificate. Today, in 2023, we have 4 master's programs, 6 programs, 4 MOOC courses, and one certificate, thousands of students. We are privileged to have our Honorable Vice Chancellor's support and blessings. With that, we have expanded tremendously. The credit goes to the entire team of the school, faculty, and the former directors of the school, Professor Sambhanath Singh and Professor O.P. Dev. With this note, I once again welcome you all to this launch program. Thank you. Thank you. Thank you, sir. As we all know that we are here for the national launch of the specialized program of this school. And these are 4 PG Diploma in Advertising and Integrated Communication, MA in Journalism and Electronic Media, MA in Journalism and Digital Media, and MA in Development Journalism. So I would like to invite the program coordinator of PG Diploma in Advertising and Integrated Communication, Dr. Padmini Jain, for the brief introduction of the program. Padmini. Thank you, Amit. As Professor Arun has rightly As Professor Arun has rightly mentioned, the scenario of the media is changing drastically. And we see that these are the times of branding and communication. Persuasive strategies like advertising, public relations are regarded as the in-age professions. Media is full of the examples of publicity that can be garnered either through free mediums or through paid. From page 3 to special supplements of the brands, we all see from paparazzi to other things, it is actually the era of being in the public eye. From the moment you wake up, you're constantly being pursued to buy into a product or a service or to follow a trend. It may sometimes be so subtle that you do not even realize that you are being targeted to believe into an idea. Of course, we are all familiar with the traditional forms of advertising like television, newspapers, hoardings, roadside banners, but the persuasive attempts do not end here. Communication experts are leaving no stone unturned to reach you. From the apps in your phone to the Stepney covers on the scooters, from the radio playing in the background to the poly bag in which you carry your lunchbox, from the car that your favorite hero drives in a movie to the little logo on your sweater on your cap, you are witnessing some form of persuasion. It is hence the need of the hour to be literate and be aware of what is happening and how and who is trying to catch you in the net by reaching you through various mediums of integrated communication. This program that we are launching today is trying to bring to our learners an attempt to make them understand and intelligently sift through this plethora of persuasive information. Professionally, the new age wizards are vying to cash in upon the high salaries that this job market is offering. It is actually a way to do what you enjoy and get paid for it in turn. Creativity and monetary benefits blend in the advertising agencies, public relation firms, digital marketing boutiques, event management companies, and corporate houses. Needless to say, jobs in these areas are in abundance, and our attempt through this program is to train professionals and help bridge the gap of the trained professionals and the need of the industry. We have tried to bring in academicians and practitioners from across the nation to write for us. The study material, the videos, and the podcasts have been compiled by various teachers with unique expressions and different styles of teaching. This program carries 8 courses, 7 of these being theory courses and 1 is a practical course. And there is an approach
of offering an exit. If a student doesn't wish to pursue after 4 courses, they can earn a PG certificate. And if they complete all 8 courses, they of course will earn a diploma. This is in tandem with the lateral entry and exit policy of the NEP, and also in tandem with the policy that IGNOU has followed through its inception. PGDIC is open to all the graduates from any discipline. Any person interested in the field can join it. Even lay people or people from different organizations and other disciplines can benefit from this knowledge. The fee has been kept at 4,000 per semester, that is 8,000 of the total diploma, making it hence accessible and affordable for various categories of people, following the motto of IGNOU of taking the education to doorsteps of different people and reaching the unreached. The field of integrated communication is expanding, especially with the advent of globalization and digital media, and postgraduate diploma and postgraduate certificate in advertising and integrated communication is an attempt to bridge this gap by training the professionals, by offering them job-oriented skills and giving knowledge in the field. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर पुनली जी। अब मैं डॉक्टर अमित कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अमित कुमार MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। इस प्रोग्राम के बारे में और इसका जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर अमित जी प्रस्तुत करेंगे। अमित जी। धन्यवाद रमेश जी। MA in Journalism and Electronic Media is a master's program with the minimum duration of 2 years. And as per the IGNOU norms, we are providing the maximum duration also, that is 4 years. This program is in modular structure, and first year of this program covers the different areas related to news. That includes print also, that includes online also, that includes a little bit of advertising and public relation also, the different media theories also. So after, if a student wants to exit after first year, then it will be given PG diploma in journalism and mass communication after the first year. And in second year is completely focused on the electronic media and research, of course. We all know that there is a huge demand for the production of audio content and audiovisual content for different type of platforms. It may be internet-based platforms, it may be the traditional broadcast platform. So the second year is focused on audio production, then audiovisual production, then digital photography, then communication research also, and some projects and practicals related to electronic media. This program is currently available through the open and distance learning mode, and total 72 credits with the 16 courses. So with the focus on the basics of journalism and mass communication in first year, and more focus on electronic media component in second year, we have created this package for the MA in journalism and electronic media. So it was the second program, specialized program of the school, MA in journalism and electronic media. The next one is MA in development journalism. और मैं इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम संयोजक हैं डॉक्टर रमेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में जानकारी प्रदान करें। रमेश जी। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। जैसा कि सर्वविदित है, जून 2021 में स्कूल ने PG डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नाम से एक डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया था, और 1 साल के बाद हम लोगों ने उस प्रोग्राम को रिव्यू किया, और माननीय कुलपति जी का भी मार्गदर्शन था कि इस प्रोग्राम को क्यों न मास्टर्स लेवल पे ले आया जाए। और इसी मार्गदर्शन और सुझाव के उपरांत हम सभी लोगों ने आज 3 MA प्रोग्राम और एक PG डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और उसी विजन, मिशन और उद्देश्य के तहत PG डिप्लोमा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को हम लोग
MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म नाम से लेकर आए हैं और इसको लॉन्च कर रहे हैं आज। इसके पीछे खास किस्म का मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने लंबे समय से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के कैंपेन संचालित कर रहे हैं और 2030 तक इसको अचीव करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है। तो पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को भी हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट की एजेंसियां हैं, जो क्षेत्र हैं, उसको ध्यान में रख करके हम लोग डेवलप किए थे। और इस प्रोग्राम को भी दुनिया में आजकल डेवलपमेंट जर्नलिज्म या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या सोल्यूशन जर्नलिज्म का जो कंसेप्ट आया है उसको ध्यान में रख करके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी जो सजेस्ट किया गया है कि अब जो प्रोग्राम होने चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि हम लोगों का स्कूल और जो एरिया है वो स्किल बेस्ड एरिया है और जो प्रोग्राम है मैक्सिमम स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, बावजूद इसके हम लोगों ने इसमें इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच लिए हैं। और स्किल बेस्ड प्रोग्राम है एम इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, 2 साल का प्रोग्राम है और टोटल इसके 72 क्रेडिट का प्रोग्राम है। और इसके जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट लेवल का एलिजिबिलिटी हम लोग रखे हैं और इसका ड्यूरेशन मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 4 इयर्स जो इग्नू की पॉलिसी है या जो इग्नू का फ्लेक्सिबल एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत रखा गया है। और बहुत नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी प्राइमरी स्टेज में रखे हैं, 10,000, 5,000 पर ईयर, 5,000 पर ईयर फी है। और स्टडी मटेरियल हम लोग डिजिटल और प्रिंट दोनों मीडियम में देंगे, दोनों मॉडल में देंगे। और टोटल फर्स्ट ईयर में 6 थियरी कोर्सेस हैं, सेकेंड ईयर में जाकर 5 थियरी और 1 डिजर्टेशन और प्रोडक्शन पोर्टफोलियो, ये एक ऑप्शनल रहेगा। स्टूडेंट को इसलिए हम लोग रखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोजेक्ट ऑलरेडी किए हुए हैं या रिसर्च एरिया से उनका ओरिएंटेशन है वो प्रोडक्शन पोर्टफोलियो कर सकते हैं, और जो इसको नहीं करना चाहते हैं, जो रिसर्च में आना चाहते हैं, उनके लिए सेपरेट कोर्स है और उसके बाद ये डिजिटेशन करना है। तो ये संक्षिप्त परिचय और संक्षिप्त जानकारी इस प्रोग्राम से संबंधित है। आगे इसके बारे में हम लोग अपने इग्नू की वेबसाइट पर, स्कूल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा के माध्यम से भी और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन छात्रों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शेयर करेंगे। इस कार्यक्रम को डॉक्टर अमित जी आगे बढ़ें। Thank you, Ramesh ji. Now the 4th specialized program, that is MA in Journalism and Digital Media. And I invite Professor K.S. Arul Selvan, the program coordinator of MA in Journalism and Digital Media, to just provide the brief about the program. Thank you, Amit. On 2 grounds, the digital media masters offered by the school has become important. One, in the media industry or entertainment industry, one sector is witnessing double-digit growth for the last 5 years or more. That's a digital and gaming industry compared to other television, print, or radio. This trend is likely to be continued for next 1 decade. So it signifies the demand for more productivity, more human resources. Secondly, unlike the television, print, or radio, only professionals can participate. That's industry norms. Whereas in digital media, the gadgets and technology part and parcel of commodity. So anyone can participate, anyone can use it. This is the reach of this platform. And the digital media is not only restricted to the information sharing or media field. ICT is being incorporated in every segment of the society, every industry level, in the government sector. So this is the part of the social setup. And that line, couple of years back, the school launched a postgraduate diploma in digital media. And this master's degree is extension of this diploma. And we are incorporating the information retrieval, data repetition, analysis
in terms of journalistic perspective as well as from the research perspective, focusing in and around the digital technology. So this is a unique combination of journalism and digital media in a master's level, quite new venture in the Indian context by the university. And the basic eligibility is a bachelor's degree, and it covers areas in the field of journalism, digital media and society, digital media practical, and internet research projects, and many more courses across the 2 years time. Thank you. मैं पत्रकारिता विद्यापीठ के और मीडिया क्षेत्र के 30 साल से ज्यादा अनुभवशील प्रोफेसर आदि शंभुनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म एजुकेशन इन इंडिया। आज के दौर में हालांकि अगर भारत में पत्रकारिता के इतिहास को देखा जाए तो शुरू में ज्यादातर इस पत्रकारिता में वो अगुवाई किए जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, और उसके बाद के दिनों में साहित्य का ज्यादा प्रभाव रहा हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में और बाकी पत्रकारिता में भी, और इसका अभी भी प्रभाव है। लेकिन 1960 के दशक के बाद जब मीडिया एजुकेशन फॉर्मली स्टार्ट हुआ तो ज्यादातर ट्रेंड लोग पत्रकारिता जगत में आए, और अभी मौजूदा समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो या ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया हो, सब में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ा है। और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरे विश्व के स्तर पर पत्रकारिता में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और बदलाव को आप देखेंगे तो पूरी दुनिया को एक समय कहा जा रहा था कि एक कंपनी ने स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज एक ऐसा दौर है जबकि पूरी दुनिया की मीडिया एक मुट्ठी में, एक मोबाइल में समा गई है, और पूरी मीडिया की प्रतिस्पर्धा मीडिया के क्षेत्र में मोबाइल के फॉर्मेट में देने की बढ़ रही है। ऐसे दौर में मीडिया के क्षेत्र में एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्किल बेस्ड एजुकेशन का क्या महत्व है और इसका भविष्य क्या है, इस पर हमारे साथ प्रोफेसर शंभुनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस पर प्रकाश डालें। प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह। थैंक यू रमेश। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे ऑनरेबल वाइस चांसलर इग्नू प्रोफेसर नागेश्वर राव, आज के हमारे रिस्पेक्टेड अतिथिगण प्रोफेसर JS यादव, श्री कमर वहीद नकवी, सुश्री जयश्री जेठवानी, प्रोफेसर जयश्री जेठवानी, डॉक्टर दीपक गुप्ता और बाकी गणमान्य सदस्य। स्पेशलाइजेशन इन मीडिया एजुकेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये इंडस्ट्री में जो ट्रेंड शुरू हुआ था ये एक तरह से उसी का कंपनसेशन है। शुरू में जब जर्नलिज्म एजुकेशन शुरू हुआ तो लगभग एक ही प्रोग्राम चलता था। शुरू में तो डिप्लोमा से शुरू हुआ। डॉक्टर यादव को याद होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद पहला डिप्लोमा शुरू हुआ। तो एक ही प्रोग्राम में सारी चीजें पढ़ा दी जाती थी, बता दी जाती थी। उसमें प्रिंट जर्नलिज्म भी, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म भी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन और जितने टाइप्स हो सकते हैं जर्नलिज्म के, वो एक प्रोग्राम अगर आप कर लें तो एक प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज के बारे में बता दिया जाता था। धीरे धीरे इस ट्रेंड में चेंज आया और यही स्थिति शुरू में जर्नलिज्म की भी रही है। जर्नलिज्म में जर्नलिस्टों के बारे में एक कहावत
हुआ करती थी। नकवी जी को याद होगा कि जर्नलिस्टों के बारे में ये कहा जाता था कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं, पूरा कुछ नहीं जानते। तो ये एक तरह से कंपल्सन प्रोफेशन का भी था, क्योंकि बहुत सारे काम एक ही व्यक्ति को करना पड़ता था। बीट रिपोर्टिंग का प्रचलन तब भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक रिपोर्टर के पास एक ही बीट होगी, उसको 2-3 बीट का काम देखना पड़ता था। अगर मेरा ख्याल है हाल तक एजुकेशन वगैरह की कोई बीट ही नहीं होती थी अखबारों में, और सेम एप्लीकेबल टू ब्रॉडकास्ट ऑल्सो। तो पता चला कि एक ही रिपोर्टर वो एजुकेशन भी देख रहा है, कल्चर भी देख रहा है, एनवायरनमेंट भी देख रहा है, सोशल इश्यूज भी देख रहा है। तो वो एक तो ये था कि उस तरह का आग्रह उतना नहीं था, समाज से भी ऑडियंस से भी उस तरह का आग्रह नहीं था, और थोड़ा थोड़ा सब जान लेते थे इंफॉर्मेशन के लेवल पे। लेकिन ये आग्रह धीरे धीरे ऑडियंस की तरफ से आया, उनको स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और उसको बहुत सारा उसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ। तो पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करके चाहिए। तो धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन का आग्रह इंडस्ट्री में भी बढ़ा, और उस हिसाब से मतलब वो तो अब तो यहाँ तक पहुंच गया कि अलग अलग क्षेत्र के न्यूज़पेपर अलग हैं, चैनल अलग हैं। मतलब पता चला साइंस का चैनल अलग है, धर्म कर्म का चैनल अलग है, न्यूज का चैनल अलग है, कॉमर्स का चैनल अलग है। तो ये एक तरह का स्पेशलाइजेशन ही है, अलग अलग स्पेशलाइज सब्जेक्ट के ये आग्रह उसका बढ़ा, उसका ऑडियंस बढ़ा, और उस तरह से उसका स्पेशलाइजेशन भी बढ़ा। ये चीज एजुकेशन में आनी लाजमी थी, और वो अब धीरे धीरे एजुकेशन में भी आ रही है। उसका एक प्रमाण तो आज ही आपको दिख रहा है कि 4 अलग अलग सेगमेंट पे हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये काम एक में भी हो सकता था। स्कूल में एक पीजी डिप्लोमा चलता था जिसमें सब थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता था। उसमें पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीजमेंट का भी प्रोग्राम था, ब्रॉडकास्ट का भी था, प्रिंट का भी था। तो न्यू मीडिया शायद उसमें नहीं था उतना, क्योंकि जब वो प्रोग्राम डेवलप हुआ था तो न्यू मीडिया का इतना जोर नहीं था। तो अब वो वाली परिपाटी धीरे धीरे कम हो रही है कि एक में ही सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा बता दिया जाए। अब ये है कि हर सेगमेंट को डिटेल में बताया जाए और उसके बारे में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो अब स्पेशलाइजेशन का आग्रह बढ़ रहा है, इसलिए वो एजुकेशन में भी आना तय है। इसीलिए अब स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लगभग सारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, देश के सारे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में ये कोशिश हो रही है कि वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज चलाएं। क्योंकि अब जैसे टेलीविजन में अगर नियुक्ति होनी है, उसको अगर जर्नलिस्ट चाहिए, तो वो नॉर्मल जर्नलिज्म का कोर्स करने वाले के बजाय अगर कोई ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का कोर्स करके आया है तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, क्योंकि उसको उन्हें कम सिखाना पड़ेगा, वो तुरंत उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्पेशलाइजेशन का आग्रह ये सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ता है और एक दूसरे की कमी पूरी करता है। जो डिमांड इंडस्ट्री में पैदा हो रही है उसकी पूर्ति करने के लिए जो एकेडमिक्स में उसी हिसाब से प्रोग्राम फ्रेम किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ताकि उससे उनकी जरूरत भी पूरी हो। तो ये बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है जिसको हम लोग भी अपने ढंग से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो डाइवर्सिटी है प्रोग्राम्स की इन सेम सेगमेंट, दैट इज ए गुड थिंग। और ये आगे और बढ़ेगा, इसका आग्रह भी बढ़ेगा, ये ट्रेंड भी ज्यादा मजबूत होगा। मुझे लगता है कि हमारे ये प्रोग्राम फ्यूचर में काफी बड़े ऑडियंस बेस को कैटर करेंगे, और ये एक शुभ लक्षण है, और स्कूल उसको अपने ढंग से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे आज के मेहमान हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को हम लोग किसी न किसी तरह से अपने प्रोग्राम में जोड़ने की कोशिश करते हैं, एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए और सबके लिए भी। तो उनका भी सहयोग और ब्लेसिंग्स बनी रहे स्कूल के प्रोग्राम्स को लेकर के, और उनके विचारों को भी हम लोग जानना चाहेंगे, उससे फायदा उठाना चाहेंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए और इनके जो हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी हम इस बात के लिए बधाई देंगे कि उन्होंने एक फुल फ्लेज मास्टर लेवल का प्रोग्राम डेवलप किया,
ये स्कूल के लिए बड़ी बात है, विश्वविद्यालय के लिए अच्छी बात है। आप सब लोगों को बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार के, उन पर आधारित कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है उस पे आपने उसको रेखांकित किया और उसको प्रकाश में लाया आपने। Now we have with us Dr. Deepak Gupta, a well-known name in the field of development communication. Currently, he is Senior Strategic Communication Advisor, UN Asia Pacific. So now I invite Dr. Gupta for his views and blessings. Deepak is our alumni also. Mute है. You are mute. Mute है आप, mute है. दीपक जी म्यूट है आप, म्यूट है, सुनाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा. जी. Now am I audible? Sorry. Now you are audible. Thank you, Professor Shambhu. Yeah. I actually said that would have been my first line. That you said that I am also very proud alumni of the same school where I'm participating today for the launch of the new courses. I think I'll take this opportunity to start with the Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao. I think big time congratulations to you and the entire team of the School of Journalism and New Media Studies. Really, because, I think even a few years ago, if I can say that I also was partially contributed to the module development for the development communication that was being developed at that point in time. And I'm very happy to see that the full-fledged course now has now come about, and I think it will benefit a whole lot of people working in the development sector and even otherwise. तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक ये बहुत ही टाइमली कोर्सेज हैं. मैंने इन चारों के बहुत ही ब्रीफली इनको समझने की कोशिश की प्रोफेसर अरुण से जब बातचीत हुई उसके बाद. मेरा ये मानना है बहुत ही, क्योंकि मैं दोनों तरफ आई वुड से बिलोंग टू दी बोथ साइड्स ऑफ द फेंसेस, कि जब तक, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं, स्किल्स पे बहुत जोर है आजकल, और वो सही बात है, बिकॉज एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी एजुकेशन. सो जो ये कोर्सेज अब हम लोग बना रहे हैं स्कूल में, 3 MA के कोर्सेज और 1 PG डिप्लोमा कोर्स, somewhere somehow I think we also need to ensure, हालांकि अभी जो बहुत ब्रीफ प्रेजेंटेशंस हुई हैं, ऐसा लगता है कि इसमें स्किलिंग एस्पेक्ट जो है वो बाकी उस पे काफी एम्फेसिस दिया गया है. हैंड्स ऑन स्किल डेवलपमेंट, मैं ये किस लिए कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस व्हेन वी लुक फॉर रिक्रूटमेंट्स, और आई थिंक प्रोफेसर यादव मेरी इस बात को सपोर्ट करेंगे, एटलीस्ट पिछले कम से कम 2 डेकेड से तो ये मेरी कंप्लेंट डॉक्टर साहब के साथ हमेशा रही. जब भी हमने कोई रिक्रूटमेंट चाहिए, चाहे वो सीनियर पोजीशंस की हो, मिड लेवल हो, यंगस्टर्स हो, खास तौर से कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, बिहेवियर चेंज, एडवोकेसी एरियाज में फॉर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम और इंटरनेशनल डोनर्स, डेवलपमेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अनफॉर्चुनेटली जो हमको मिल रहे हैं लोग, वो ज्यादातर बहुत ही अच्छे स्कूल से निकले हुए लेकिन जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड के मिल रहे हैं. वेरी ब्राइट, एक्सट्रीमली गुड, लेकिन जिन स्किल्स को मैं देखना चाहता हूं उनके अंदर, जो काम उनको उस सीट पे आने के बाद करना है, वो उस स्किल के साथ नहीं आए. जर्नलिज्म में बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रख्यात हैं अपनी फील्ड में, लेकिन जहां मुझे उनसे बिहेवियर चेंज की मॉनिटरिंग करवानी है, जहां मुझे उनसे एडवोकेसी कैंपेन की इवैल्यूएशन करानी है,
तो जो पर्सपेक्टिव मुझे चाहिए या जो मुझे रिजल्ट्स चाहिए उनके काम के, तो कहीं ना कहीं वो गैप हमको दिखा। लेकिन मुझे खुशी है कि अब ये जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, ये समस्या काफी हद तक सॉल्व होगी। Otherwise, as I already offered to Professor Arul, I'll be very willing. I'll be very, very willing to assist the school, in sort of streamlining and possibly inputting into the course how we can provide those skills, especially for the scholars who are pursuing MA in development communication, MA in development journalism. I think that's extremely important, because when I'm talking about social and behavior change, I'm looking for skills in social mobilization sector, behavior change and marketing strategy, whether it's a concept marketing or a product marketing or branding. Partially, I think Dr. Padmani will agree with me, which also becomes a little bit of marketing and advertising sort of kind of a component. Some elements from there walks into this course. So I think we need to be, that's one area without taking much time. I think we can have a separate discussion, but big time, I think, huge congratulations. Another thing is market feasibility, I think, is one aspect we need to keep into account. It would be brilliant. क्या अच्छा हो आने वाले समय में कि हमारे कैंपस रिक्रूटमेंट्स ड्राइव में एजेंसीज आना शुरू करें, मतलब ना केवल अखबार या न्यूज चैनल्स या हार्डकोर जर्नलिस्ट की प्रोफेशन के एंगल से, बल्कि जो डोनर एजेंसीज हैं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल सिविल सर्विस की जो रिक्रूटमेंट यूएन सिस्टम में हो रही हैं, वहां के लोग बाकायदा आके कैंपस रिक्रूटमेंट्स करें। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल को कारगर आने वाले कुछ सालों में, तुरंत नहीं तो आने वाले कुछ सालों में, आई थिंक हम लोग इसको कारगर डेफिनेटली कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट, दैट वी आर प्रोडक्ट, दैट इज आवर स्कॉलर, is so bright and so sellable in the market with skills that I think agencies will reach out and come and pick up, the scholars from our school. I think that's one aspect also. I think SOJNMS needs to keep in mind. Needless to emphasize, I think communication has undergone a huge paradigm shift. जैसा अभी प्रोफेसर अरुल ने कहा, प्रोफेसर शंभुनाथ जी ने भी कहा, any netizen, anybody who's internet literate, the one who has access to smartphone, one who opens a laptop and has an access to net connection, indirectly has become a content creator. चाहे वो फेसबुक पे लिख रहा हो, एक पैराग्राफ लिख के छाप रहा हो, चाहे वो अपनी रील बना के डाल रहा हो, चाहे वो जो छोटे छोटे वीडियोस तरह तरह के एप्स हैं उसमें डालते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंसर के फॉर्म में काम कर रहे हैं। 100 में से सभी नहीं तो कम से कम 100 में से 5, 10, 15 लोग ऐसे जरूर हैं जो एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभा रहे हैं। और आई थिंक ये कोविड-19 के दौरान ये एक बेस्ट पीरियड था, बेस्ट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, to really re-look at our communication space, if I can say so, कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन रीच आउट हुई, किस तरीके से लोगों तक जानकारियां पहुंची, लोगों तक एक आउटरीच एफर्ट्स पहुंचे, एंड ऑफ कोर्स कहीं कहीं पे मिसयूज भी हुआ, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन, उसको हैंडल करना, उसको एड्रेस करना, गलत र्यूमर्स को ना फैले, उसको एड्रेस करना, तो वो एक अलग इश्यूज है साथ साथ। लेकिन आज के दिन जैसे आलोक जी, मुझे नहीं दिख रहा कि वो शायद यहाँ पर है, आलोक वर्मा जी, उनका मुझे एक प्रोजेक्ट याद आता है कई वर्षों पहले, जिसमें उन्होंने वो नेटिजन्स को एक जर्नलिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया, नेबरहुड जर्नलिज्म की तरह से, उस कॉन्सेप्ट पे। तो मेरा ख्याल वो मॉडल मुझे एकदम से दिमाग में आया जब कोविड-19 के वेव्स चल रहे थे इंडिया में, कि आज के दिन कितनी जरूरत है उस मॉडल की। और वो सब चीजें मेरे ख्याल कहीं ना कहीं जो हमारा ये चौथा कोर्स है, MA इन डिजिटल जर्नलिज्म, इन डिजिटल communication, I think that will widely cover those skills, especially
imparted to those who are interested. I think one last point, if you allow me, because of my mission travels in the countries even around India, say Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Myanmar, and so on. एक रिक्वेस्ट ये थी कि कुछ लोगों ने मुझसे खास तौर से कहा कि वो इग्नू से पढ़ाई करना चाहते हैं और उनमें से एक या दो ने शायद अटेम्प्ट भी किया कुछ कांटेक्ट करने का, लेकिन बड़ा मुश्किल हुई बिकॉज मैंने कहा कि मेरा मानना है कि शायद सार्क कंट्रीज के लिए कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए. इट्स सच ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन सच ए रेप्यूटेड स्कूल. सो ये मेरी आपसे एक इल्तिजा होगी, गुजारिश होगी कि आप इसको जरा प्लीज ध्यान में रखें. मुझे नहीं मालूम फिलहाल यूनिवर्सिटी मैंडेट में सार्क कंट्रीज को प्रायोरिटी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कृपा करके इस पे जरा प्लीज आप विचार कीजिए. ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं हमारे सार्क नेशंस के अंदर ही जो वाकई में इग्नू की सेवाओं लेना चाहेंगे. जी, थैंक यू. I think I won't take much time, and I think once again I appreciate for inviting me over, and I look forward to be active participant in times to come. Thank you. Thank you so much. हमारे बीच में श्री आलोक वर्मा जी हैं. आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई मीडिया संस्थाओं के साथ एक लीडिंग पोजीशन में लीडर के तौर पर लीड करते रहे हैं, और अभी आप न्यूज़ के एडिटर हैं और हमारे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ के स्कूल बोर्ड मेंबर भी हैं. मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपको सादर आमंत्रित करता हूं. आज का जो विषय आपको ईमेल के माध्यम से बताया गया है, आप उस पे अपना विचार व्यक्त करें. श्री आलोक वर्मा जी. बताते चलो रमेश. और हम लोगों ने सम्मानजनक एक समय रखा है और इसको उसी समय के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. आप सभी से अनुरोध रहेगा कि समय के सीमा को ध्यान में रखते हुए आपके विचार हमारे बीच में आएंगे तो हम लोग ज्यादा खुशी महसूस करेंगे. श्री आलोक वर्मा जी. Thank you. Sorry, I joined a little late because I was involved in some other meeting, so I did not know what is the time duration you've kept for this. So it'll be nice if I know what is the time duration you've kept for each one. 10 minutes. Oh, thank you so much. Good enough. So the Honorable Vice Chancellor, I don't know whether Dr. Yadav is here or not, but I think his name was there. Shambhu Singh ji, Naqvi Sahab, Jayashri ji, Professor Arul, and all the eminent faculties, and my friend Dr. Deepa Gupta. At least I've been able to see him here, if not meeting elsewhere. So I probably would like to limit myself only digital journalism, because I'm part of the IGNOU process in developing the MA digital journalism courses. So I just would like to just give my few observations and points of views with regard to the growth of digital news or digital platforms. So interestingly, if you all, because we are all have been living in this life of digital life. So last decade, if we say the last few years of the last decade, we really saw a great emergence of digital media. It really came like an onslaught, and very eminent platforms which we are seeing today have become into the public mind. Facebook or Twitter or Snapchat or Instagram, or many others which are not so well known, but they are having very credible influence in the minds of users. They actually challenge the legacy media. And we are all part of legacy media. We all have been, at least Naqvi Saab, myself, have spent considerable time in the traditional media. And I think I should mention something here. It is out of my this brief, but many would not know probably here who are sitting part of this panel. Naqvi ji is one of those very senior and eminent journalists
but a very little thing which most of people don't know, that the word Aaj Tak in the Aaj Tak news channel was given by Naqvi ji. So actually, Naqvi ji is really the person who created Aaj Tak and gave the name Aaj Tak. So that's beside the point. Uh, so in my own experience, I entered into digital journalism space in about 2010, and Dr. Deepa Gupta just mentioned about using the neighborhood, journalism at that time. Of course, it was not a very successful project; it was quite a failed project because the penetration of internet was very poor, the bandwidth was very poor, and people were not very equipped. The cost of content creation was very high, and as a result of which, digital space was not really doing so well as it has started to do well in the early part of this decade. So we have all seen the growth of the social media platform or digital platforms. So the legacy media initially first was in denial. There is no threat to their business because digital is far away from now. Then they started to little accept it because they all opened up a few, digital, divisions within their setup. And later on, they started to believe in it. And they said really expanded their teams. And if you really look at it, that each of the legacy media business today is a very powerful digital platform as well. And gradually, as we are going to see, probably the next decade may see a great decline of the legacy business, and digital will take over. And digital has already taken over so far the mind space, and the number of people are watching, consuming is concerned. But what it worked for? It worked actually because the content users got the opportunity of converting themselves into content creators. Actually, that was the major difference. Today, everyone can unleash their creative space, and that has also led to a lot of crisis. If you have seen that the news has really been challenged in terms of credibility. Everyone today is talking about the newsworthiness is not so much as it used to be. So it all led to, because so much of content creation has happened, that there is no filtration processes in place. And as a result of which, there is no filtration, there's so much of content, the content sometimes is useful, sometimes not useful. And if we have seen it, the journalism trends also have changed. As we were taught the basics of journalism, today are not really practiced because the cost, B, the time, the whole effort in terms of being, first to be in the space, that has led to decline of creditworthiness. And it is not very typical to India. Probably if you have seen the Reuters digital news report of 2022, and 23 will be coming late. But if you really see the world, globally, people have seen the decline of trustworthiness in the news space itself. And we have all seen that the reasons are very clear. Advertisers are not showing enough interest and enough, faith, no longer in the legacy media. And therefore, the advertising is not really coming forward. A lot of people are finding various other ways to find their user and consumer. TikTok is one example which we all seen in the recent past, how it has actually come and really made billions of eyeballs, which they still because in India it is banned, but rest of the world TikTok is still the most preferred platform now for the advertisers, because they are able to get the real targeted consumer. And advertising is also becoming a bit of more categorized, so it is no generic advertising people are interested in. And since the digital advertising still is very cheap compared to television or the print, so most of our digital platforms are also bleeding. They're also not able to make money. So all these are all facts. And the biggest problem in the digital space right now, the entire digital space is facing, is the credibility. How to believe in what it is being consumed by all of us. But the good news is, this is a churning. A lot of people are now understanding how to do filtration. A lot of people have started to develop the whole paraphernalia to understand which is to be believed, what is to believe, how it is to believe. And not every information which is being passed on to the digital platform is really consumable, which probably is creating
a different kind of journalism space. And that's what I feel is very good news for anybody who's in the digital space. And one of the reasons that if you see globally in America and in Europe, many digital organizations are converting themselves into very audience specific, community specific, subject or topic specific. They are no longer into something like that just news. So this just news business, probably the era is over. Nobody is interested in just news. And as people are getting little more intelligent, more serious about consuming content, probably the content will move towards very specific content, specific in terms of community, in terms of subject, in terms of geographies. All that is we are seeing today is the trend, and we will see in next 3, 4, 5 years that how niche audiences will grow, and how the niche digital platform will be able to find the right business models, because the cost of creating content in the digital space is far less than in the legacy media even now. So having said that, the courses which have been designed in the IGNOU probably are going to prepare students, those students who are going to make journalism, digital journalism as a career. And eventually all people who are also into the broadcast medium or into the print medium today will eventually move towards digital, because finally the digital space will take over completely the mind space and the consumer space in print or in television. So that trend we are already seeing. So therefore, these students are going to benefit, and these courses are very fundamentally very strong, because they give you a lot of insights and a lot of depth in understanding data, the content visualization, the data presentation, how to present data, write data for the digital spaces. And all the faculty members who are part of this panel also, they've made a lot of efforts in developing this course model. And probably this is the first, second, third iterations. I think more iterations will go on. And that's why the need of the market will be also different in time to come. Accordingly, probably the course material and the kind of practical or the sort of, as we call internships models will also change. So I'm for one who believe in digital space, and the voice of people today, which is little scuttled, and this is becoming voice of select, probably will come back into the voice of people, because digital space and digital platform would offer that. And that's the actually strength of the digital platform. So having said that, I congratulate everyone who have launched this course. And I hope to see that the students are going to be part of this new course, and they will benefit out of this course. And thank you so much for inviting me over here. Thank you. धन्यवाद श्री आलोक वर्मा जी। अब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रोफेसर रहे प्रोफेसर जयश्री जेठवानी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम लोगों ने आज एक पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में मैं प्रोफेसर जयश्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। प्रोफेसर जयश्री जेठवानी जी। धन्यवाद यादव जी। Am I audible? जी जी, please. Good evening all. Chair for today's event, respected Vice Chancellor Dr. Nageshwar Rao, senior colleagues and colleagues from media academics and industry, Dr. Yadav, Nakvi ji, Alok ji, Deepak ji, and invitees present both offline and online, Director and faculty of the School of Journalism, New Media Studies. It's indeed my honor and pleasure to be invited for the launch of this event. As brought out by Dr. Padmini Jain in her introductory comments on the aims behind the introduction of the course PG Diploma in Advertising and Integrated Communication, I believe a course of this kind was overdue. I recall many consultations and meetings organized by the course anchor, Dr. Jain, especially in the last 2 years, which brought many minds together, both from industry and academics. This also meant developing materials and courses by involving more than 80 faculty members, and I think more than 150 units were written. And I had to the mammoth task, and I had the privilege of editing some of them. And I have no hesitation in saying
that I was quite impressed by some young faculty members with their scholarship. They've really done a great job. Now, coming to the advertising industry, why this course? A huge industry pegged at more than 1 lakh crore. Advertising has always drawn contrast. Advertising not only moves the markets, it also moves the minds. And when it draws contrast, it means that from the one end, it's labeled as market-driven, insensitive, sexist. To the other extreme, surely coming from some industry guy, that ad space probably is the only happy space in the media amid reams and hours of morbid news on death and destruction and often meaningless entertainment. Similarly, public relations is supposed to be the voice of an organization, also has a share of criticism for manipulating the minds of the people, especially in the age of misinformation, disinformation, and fake news. Advertising, as we all know, is a practical field which would need engaging with the students at various levels, connecting them with the media, academics, industry stalwarts, and researchers. The course curriculum, in my mind, has been very well developed, and the course units have been written by the best minds. However, when it comes to the real teaching, it needs a nuanced approach. I would like to flag some of the areas which I feel that in the interactive sessions, which I'm sure the course anchor would be including, would be addressed. One of the foremost which comes to mind is the discourse on gender. Advertising is often criticized for being very, very sexist and very insensitive to the gender. Recently, I conducted a study for the ICSR where I was senior research fellow, and we found that more than 80% of advertisements across board, across brands, were insensitive and very, very patriarchal. And since this was a kind of an advocacy research which I conducted, so we did a lot of things. I wrote a policy paper which went to the stakeholders. We also organized a stakeholder meet, at the Shastri Bhavan, organized the Information Broadcasting Ministry. It did something very interesting, which I must tell the academics and my colleagues from the media. They invited all the stakeholders, including the professional bodies and all. And when they, were given the findings, insights from the research, they didn't seem to really like, because it was not very complimentary for them. But what really happened after that was that ASCI, the Advertising Standard Council of India, looking at that, probably writing was on the wall for them, they commissioned a huge research all over India, spending crores of rupees to understand the gender discourse in advertising. Yesterday, I was on the board of studies of one of the largest private, media school, and I was informed that they're getting calls from ASCI and other professional bodies to invite them to the schools of journalism and advertising for a discourse on gender. So whatever little we do, it has its impact. So it's very important that the courses of such kinds also have, these things are addressed. The other area which I like to flag is the role of celebrity and social media influencers in informing, engaging, and at times maneuvering the minds of the gullible people. There are more than, I think half the human race is connected to the internet. Thousands of hours of video uploaded every minute on the internet. Everybody who has, engagement with the social media writes or uploads something. I hope that someday somebody somewhere would be reading what he or she is writing, and people do read. We are seeing that how celebrities are created, on the YouTube. So it's very important that a course of this kind must give that kind of media literacy to the students. Critiquing the role or scope of marketing, advertising, and PR in a larger media ecosystem in influencing news is another area that needs exposure among the scholars. Another area which I would like to flag is the role and scope of professional bodies. The war on TRPs as impact on tariffs need to be deliberated upon so that the scholars, when they go to the industry, they understand the undercurrents. As the course is digital in nature, a lot can be innovated in pedagogy. Driven by technology, I believe, we live in a flat world, cutting across the physical barriers.
I hope it will be possible for the media school in IGNOU to have a listing of the best minds across the world and engage, and they should be from multidisciplinary areas like media, research, sociology, advocacy, industry. When you look at the data around the world or some interesting books or researches done, I haven't seen much research done by advertising, but the schools of sociology, the sociologists have done some extraordinary work on advertising, especially the content analysis and impact it has on the gullible minds. So if it is possible that the course engages people from across the world in panel discussions, and probably maybe once in an academic year, if we can organize one global conference on the trends in advertising, integrated communication, and it is doable now. I've done it in the past, it can be done, and you'll find best of scholars coming to you and enriching your course and also enriching the minds of the young scholars. So I'll keep it short with this. I once again congratulate the university, the School of Journalism and Studies, and the course anchor, Dr. Padmani Jain, and look forward to beginning of this course in the current year. Thank you so much for inviting me. धन्यवाद प्रोफेसर जयश्री जी, आपके विचार इस प्रोग्राम और छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरक रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपका वक्तव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध रहेगा और एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन का जो प्रोग्राम है और ये जो प्रोफेशन है काफ़ी ग्लैमर वाला है, और हमारे इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर भी काफ़ी ग्लैमर पसंद है, इसलिए इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्राम तो बनाया है। और अब मैं भारतीय पत्रकारिता में खास तौर से जब निर्भीक, निष्पक्ष, सामाजिक सरोकार और संतुलित पत्रकारिता को याद करते हैं तो श्री कमर वहीद नकवी जैसे व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं। मैं डॉक्टर अमित जी को अनुरोध करूंगा कि श्री कमर वहीद नकवी साहब के बारे में थोड़ा बता के और आपको आमंत्रित करें। धन्यवाद रमेश जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि टेलीविजन पत्रकारों की, या अब कहें कि वीडियो पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी है जिन्होंने नकवी साहब से प्रेरणा ली है, नकवी साहब से सीखा है। और मुझे याद है कि भारतीय जनसंचार संस्थान के जब छात्र जीवन था तब से हम सब बहुत बड़ी संख्या में टेलीविजन पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट और शिक्षक ऐसे हैं जो नकवी साहब को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो यह हम सब के लिए गर्व का और बहुत ही सुखद क्षण है कि इस राष्ट्रीय लॉन्च कार्यक्रम में नकवी साहब हमारे साथ उपलब्ध हैं, हमारे साथ हैं। तो मैं नकवी साहब को उनके विचारों और आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद अमित जी। नकवी जी टेलीविजन जर्नलिज्म से पहले एक लंबा समय प्रिंट जर्नलिज्म में भी बिता चुके हैं। रविवार से लेकर नवभारत टाइम्स, चौथी दुनिया, बहुत सारे अखबारों में बहुत सीनियर पोजीशन पे रहे हैं। और वो वाला पक्ष इनका इससे ढक जाता है जो इनका बाद का मामला है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का, वो इनके पीछे वाला जो ये है उसको बिल्कुल ढक देता है, जबकि पीछे वाला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है। मैं सिर्फ कितना, चूंकि एडिटर थे, मैं उसमें कॉलम लिखता था, इसलिए बता रहा हूँ। वो वाला काफी लंबा चौड़ा है। रविवार, नवभारत टाइम्स, चौथी दुनिया, एक्सेट्रा। हाँ नकवी साहब, अब आप कुछ कहें। धन्यवाद प्रोफेसर शंभुनाथ जी। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूँ माननीय कुलपति महोदय नागेश्वर राव जी का, और उनको बधाई देता हूँ कि ये 4 नए कोर्स लॉन्च किए हैं और उसमें मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का आपने गौरव प्रदान किया। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, और इग्नू की पूरी टीम को बधाई इस कोर्स के लॉन्च के लिए। मैं छोटी छोटी कुछ बातें कहना चाहूँगा जरा सी। देखिए, डिजिटल के दौर का फर्क क्या है। डिजिटल के दौर का फर्क ये है कि अभी जो हम ये मीटिंग कर रहे हैं, अगर यही, और इसको लाइव स्ट्रीम भी किया जा रहा है,
अगर यही चीज हमको 5 साल पहले या 4 साल पहले भी करनी होती, 5 साल पहले, 7 साल पहले, तो हमको कम से कम 7 या 8 हॉबी वैन चाहिए होती, 15 कैमरे चाहिए होते, 15 कैमरा मैन चाहिए होते, ठीक है। उसके बाद पीसीआर चाहिए होता, उसके बाद उसका जो पूरा पैराफर्नेलिया है वो चाहिए होता, उसके बाद आप इसको स्ट्रीम कर पाते। और इसकी लागत कितनी होती इसका आप अनुमान लगा लीजिए। आज ये लाइव स्ट्रीमिंग और ये जो मीटिंग है ये जूम पर हो रही है और इसमें बहुत ही मामूली खर्चा है। तो जो डिजिटल जर्नलिज्म ने किया क्या है फर्क, डिजिटल जर्नलिज्म में सबसे बड़ा फर्क ये किया है कि जो टेक्नोलॉजी की कास्ट थी उसको घटा करके न्यूनतम कर दिया। मतलब एक समय में कोई टेलीविजन चैनल लॉन्च करने का जो खर्चा था वो शुरू में 400-500 करोड़ होता था, बाद में घट के वो 100 करोड़ हो गया, उसका और भी कम हो गया। अब क्या है कि आपके पास एक कैमरा हो, एक सेल्फी स्टिक हो, एक गिम्बल हो और एक बाइक हो या साइकिल भी हो, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी शूट कर सकते हैं। कोई वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल पर आप कोई एडिटिंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए, एडिट कीजिए और सीधे यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, अपना चैनल खोल दीजिए। तो इतना सस्ता हो गया है चैनल खोलना। तो डिजिटल में जो हमारा जोर होना चाहिए वो मेरा ख्याल है कि इस पर होना चाहिए। और अभी जैसे आलोक जी ने जिक्र किया राइटर्स की न्यूज रूम रिपोर्ट, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022, वो रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। उसमें ये लिखा है कि डिजिटल पत्रकारिता से लीगेसी पब्लिकेशन को बहुत ज्यादा चुनौती मिल रही है और ये टक्कर कड़ी है। साथ ही जो डिजिटल जर्नलिज्म है वो उसका क्या रोड होगी, वो ये होगी कि कंटेंट को, जो हाइपर लोकल कंटेंट और जो कम्युनिटी बेस्ड कंटेंट, उसकी चर्चा आलोक जी ने भी की कि बहुत से देशों में हो रहा है, हमारे यहाँ भी होना शुरू हुआ, अभी उतना नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो भाषाओं में अंग्रेजी छोड़ के जो बाकी हिंदी और जो बाकी भारतीय भाषाएं हैं उनमें, और उनके जो हमारे विभिन्न राज्य हैं उनमें रहने वाले विभिन्न जो समुदाय हैं उनके अलग अलग विषयों को लेकर के, उनकी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के वो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म आएंगे। कुछ आ चुके हैं, कुछ आएंगे, क्योंकि अब उस तरह के प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की कास्ट रह नहीं गई है, कोई उसको लॉन्च कर सकता है। और मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि एक हिमाचल की एक महिला है, आप YouTube पे ढूंढेंगे हिमाचल वाली तो आप तो 3-4 शायद हिमाचल वाली के नाम से आ जाती है। पर ये महिला जो है, इसके घर में दूध का कारोबार होता था, हिमाचल के किसी छोटे से कस्बे या गांव में रहती थी। और एक दिन इसको विचार आया कि मैं अपना वीडियो बनाऊं। तो इसके बच्चे ने वीडियो शूट किया, छोटे बच्चे, ज्यादा बड़े नहीं, 9-10 के 12 साल के होंगे, और वीडियो शूट किया और वो उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। वीडियो क्या था, घर की रियलिटी टीवी कि अभी मैं खाना बना रही हूँ अभी सब्जी बना रही हूँ, अभी मेरा बड़ा बेटा जो है अभी तो इसको 10 बज गया, सो के ही नहीं उठा, अभी उठाती हूँ, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन उसने बनाया कि साहब जब मेरा जो नीचे चूल्हा था वो चूल्हा अब खराब हो गया, मैं ऊपर छत पे एक चूल्हा बनाऊंगे। तो मिट्टी के चूल्हे, पहले जो पुराने चूल्हे होते थे, ईंटा लगा के मिट्टी गूंद के चूल्हा कैसे बनता है वो बना के दिखाया कि चूल्हा ऐसे बनता है। अब चूल्हा तैयार हो गया, अब इसमें रोटी बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, वगैरह वगैरह। तो साहब वो एक साधारण महिला घरेलू जिसके घर में दूध का काम होता था, उसका ये चैनल यूट्यूब पे धीरे धीरे करके इतना लोकप्रिय हुआ कि उस चैनल के विज्ञापन की कमाई से 1 साल के अंदर उसने नई कार खरीद ली और अपना एक वीडियो डाला कि देखिए ये नई कार जो अभी है ये मैंने यूट्यूब की कमाई से खरीदी है। तो जो डिजिटल है उसने सामान्य से सामान्य व्यक्ति को स्किल्ड भी किया है और एम्पावर्ड भी किया है और अर्निंग के नए नए स्रोत पैदा किए।
जो लिगेसी मीडिया है, लिगेसी मीडिया में भी क्या हो रहा है कि जैसे मान लिया आज तक है, बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन आज तक ने यूट्यूब पे इतने अलग अलग एमपी तक, यूपी तक, खेल तक, अलग अलग तरह के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और उनसे उनको सैकड़ों करोड़ की सालाना आमदनी होने लगी है, जो उनकी कमाई कभी होती नहीं थी और आज भी नहीं हो रही है उनके टीवी चैनल से, उससे कहीं ज्यादा कमाई उनको यूट्यूब के चैनलों से हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि आज के जमाने में हमें ये देखना चाहिए कि हम 3-4 तरह के मीडिया के दौर में काम करें। एक मीडिया ऐसा है जिसकी ओरिजिन प्रिंट्स हुई बड़े मीडिया हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, जागरण हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने डिजिटल में प्रवेश किया, अपनी वेबसाइट खोली, अपने ऐप बनाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि नहीं, क्योंकि टीवी के लोग डिस्कशन वगैरह, वीडियो डिस्कशन कर लेते हैं, तो उनमें से कुछ ने जो है अपने न्यूज रूम में वीडियो डिस्कशन करना शुरू किया, पैनल बुला करके, और उसको अपने वेबसाइट वगैरह पे डालना शुरू किया। कुछ ने यूट्यूब के चैनल बनाए। तो एक चैनल, एक मीडिया ये है जो प्रिंट में है, प्रिंट के बाद वो वेब में गया, यानी उसकी वेबसाइट है, ऐप है, जहां पे वो प्रिंट के कंटेंट को वेब डिजिटल के तौर पे दे रहा है। एक मीडिया वो है जिसके पास प्रिंट भी है, टेलीविजन भी है और डिजिटल भी है। और एक मीडिया वो है जो केवल डिजिटल है, जिसके पास जिसकी पैदाइश ही डिजिटल के समय में हुई। बहुत सारे मीडिया है ऐसे, अभी जैसे आप क्विंट है मान लीजिए, या न्यूज लॉन्ड्री है, इस तरह के बहुत सारे मीडिया है जो केवल डिजिटल है। और एक चौथा जो मीडिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपना चैनल चला रहे हैं, वो उन्होंने अपने अपने निश खोजे हैं कि क्या है। और जो पांचवा है, जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो मैंने हिमाचल वाली महिला का जिक्र किया है, ऐसे दिल्ली के एक सज्जन है, नर्सरी उनकी है, और वो नर्सरी पे इतने बढ़िया अपने वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद वो उनके हजारों सब्सक्राइबर हो गए, उसके बाद वो अपना सब कुछ उसी में बेचते हैं, खाद बेच रहे हैं, बीज बेच रहे हैं, पौधे बेच रहे हैं, और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो ये पांचवी कैटेगरी भी है। तो मुझे लगता है कि जो आप कोर्सेस चला रहे हैं, इसमें जितने भी कोर्सेस हैं, उसमें चाहे वो प्रिंट के लिए कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के लिए कर रहे हैं, चाहे डिजिटल के लिए कर रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा अभी भी, जैसे अभी आप कह रहे थे जय का फल शंभुनाथ जी और मास्टर अफनन, थोड़ा थोड़ा तो चाहिए, क्योंकि जो प्रिंट वाला जर्नलिस्ट है उसको भी उसकी वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा, जो टीवी वाला जर्नलिस्ट है उसको भी उसके यूट्यूब चैनल पे काम करना पड़ेगा, कंटेंट देना पड़ेगा, वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए जो आज का पत्रकार है उसको थोड़ा प्रिंट, थोड़ा टीवी और थोड़ा डिजिटल, तीनों आना चाहिए। अब उसमें जिसमें वो महारत हासिल करना चाहे, टीवी में तो उसको ज्यादा टीवी सिखाएं, थोड़ा प्रिंट और थोड़ा डिजिटल सिखाएं। जिसको डिजिटल में आना है उसको भी थोड़ा प्रिंट और थोड़ा टीवी सिखा के तब डिजिटल पे उसको भरपूर दें। तो ये करने से फायदा होगा। और एक अंतिम छोटी सी बात, मेरा एक सुझाव है ये कि इग्नू को कुछ ऐसे कोर्सेज भी चलाने चाहिए जो अंडर ग्रेजुएट हो, यानी जो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए हो। खास तौर से जैसे जो मैंने 2 उदाहरण दिया आपको, एक हिमाचल वाली महिला का उदाहरण दिया, एक जो है दिल्ली के एक नर्सरी वाले को उदाहरण दिया। ऐसे लाखों नौजवान और लाखों लोग जो देश में हैं जो तरह तरह का कंटेंट बनाने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए कोई सस्ता, कोई ऐसा जो है छोटा कोर्स बनाए और उसको अलग अलग भाषाओं में, जैसे क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें, हिंदी में जो चलाएं, तो उसका एक बड़ा जो है वो देश की बड़ी सेवा होगी। न केवल देश की बड़ी सेवा होगी बल्कि लोग आर्थिक तौर पे सशक्त होंगे, उनकी कमाई भी बढ़ेगी और एक रोजगार का जो की स्थिति भी सुधरेगी अच्छी। तो अच्छा है ये। और वो जब इग्नू से पढ़ के निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें आप उनको सिखाएंगे, एथिक्स कुछ सिखाएंगे, कुछ वैल्यूज सिखाएंगे कि फेक क्या होता है, रियल क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो कुछ एक अच्छे तरह के कंटेंट क्रिएटर पैदा होंगे जो अपना कंटेंट देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। आपके सुझाव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कूल बिल्कुल भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को विकसित करने पे विचार करेगा।
और जैसा आपने कहा कि डिजिटल का कंटेंट हर कोर्सेज में होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह है जैसे जिस कार्यक्रम का मैं संयोजक हूँ, एमए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो डिजिटल मीडिया का एक कोर्स भी है, और जितने भी जैसे ऑडियो प्रोडक्शन के लिए जो कोर्स है या ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के लिए जो कोर्स है, तो उसमें पूरा इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि ऑडियो विजुअल जो कंटेंट है वो टेलीविजन के लिए भी यूज हो सकता है और वो इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज हो सकता है। वैसे ही ऑडियो में रेडियो प्रोग्राम या पॉडकास्टिंग, इन सब को मिला के इस ढंग से बनाया गया है कि वो कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बच्चे बनाना सीखेंगे, और फिर वो जहां भी उसका उपयोग करना चाहे, या तो रेडियो ट्रेडिशनल जो ब्रॉडकास्ट रेडियो टेलीविजन है या ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वहां भी जा सकते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। अब मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया एजुकेशन के भीष्म पितामह जो प्रोफेसर JS यादव जी को हम लोग मानते हैं, और स्कूल से बहुत लंबे समय से उनका मार्गदर्शन स्कूल को मिलता रहा है, हमारे कार्यक्रमों में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, तो मैं यादव सर को उनके विचारों और आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करता हूँ। यादव सर। सर आप म्यूट हैं सर। आपका माइक्रोफोन सर बंद है, उसको ऑन कर लीजिए। यादव सर आपका माइक्रोफोन बंद है, म्यूट पे है। कुछ दिखा तो आपका कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब आ रहा है? हाँ जी सर, अब आ गया। ओके, नहीं पड़ रहा। थैंक यू डॉक्टर अमित। काफी मैं सुनता रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल thank the Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao ji, for this opportunity. Now, lots of points have been made. I'll highlight or tag a couple of points. Main thing which is a solution. We have been talking, diverging, and saying digital media has done this thing, advertising has done this thing, need to be done that. But communication is central. As Deepak has also said it, if you need to have in your new courses, which is a great demand in the society. Mr. Naqvi also made it should be done for new courses which are less educated. That suggestion is welcome. But along with that, we need to do what is needed is skill development. In all these courses, the common thing would be skill development. Now, this skill development will be common to all these courses which we are proposing, and they are welcome. Second is hands-on experience. When you do the skill development, you need to have as a part of internship or practical training, give them hand-on experience. Third thing, which Deepak also highlighted, advocacy. Behavior change, because when recruitment person looks for, he needs person who can straightway fulfill his requirement, meet his requirements. He need to provide solutions, not theory alone. So theory is important, research is important, but along with that, he should be or she should be able to provide solutions. For all this, what is needed, what I suggest, maybe could be undertaken, particularly in context of the COVID. What has been our experience? What kind of case studies we can develop, as in law and in medical professions? They are asked to write case studies. I would say media professionals also in all these areas need to develop case studies which could be helpful for the students and to the professional both. Now, that task perhaps School of New Media perhaps can take it up, that along with writing the courses, please ask people to write the case studies. Now those case studies could be
on any of these topics, particularly in context of the COVID. Now, media, of course, is manipulative. Sometimes we call it management. Sometimes its basic purpose of communication or all information is to influence in such a way, influence the process, influence the change. So change and continuity both go simultaneously. Now in that process, we need to provide solutions. Now, neighborhood school was mentioned by Alok Verma. Now that neighborhood journalism perhaps is a good idea, but as you know, technology always go hand in hand with the communication. Wherever there's a change in communication. Wherever there's a change in communication, there is a change in technology. The two together make the things possible. Without the two together, things won't change. Now, finally, I would say this idea of whole picture is also necessary. You are dividing to small pieces. The trustworthiness is question was mentioned, but overall picture, I think you should give the students the whole picture also, what's happening, and particularly in context of what Mahatma Gandhi said, what the last man in the community or last man in the society thinks. Their thoughts, their actions, their behavior is normally ignored. I would say in these case studies, particularly in context of COVID, you should remember again and again, which Gandhi said, look for the last man and see how he behaves, how he thinks, what he expects. So I would say good luck for all the new schools, the good initiative, and my best wishes. I'll be happy to associate and do whatever my little can do to furnish or to provide whatever support I can. Thank you very much. Sorry to be brief. Thank you, sir, for your enlightening words and blessings. As our director, Professor K.S. Arul Selvan, told in the beginning itself, that under the able guidance of Honorable Vice Chancellor, SOGNMS had changed its profile completely from few programs to many programs. So now I would like to invite the source of energy for SOGNMS, our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao sir, for his presidential address. सर के माननीय आदरणीय कुलपति जी की अध्यक्षता से पहले हम लोग अनुरोध करेंगे कि आज के जो 3 MA प्रोग्राम और एक PG डिप्लोमा प्रोग्राम है, उसका फॉर्मल औपचारिक लॉन्चिंग आपके कर कमलों से किया जाए। एड्रेस के पहले होगा, एड्रेस के बाद? एड्रेस के पहले, उसके बाद एड्रेस करें। पहले ऐसे बटन पर दबाना पड़ेगा। लग गया? PG Diploma in Advertising and Integrated Communication, MA Journalism and Electronic Media, MA in Development Journalism, MA in Journalism and Digital Media.
माननीय कुलपति जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि यह पत्रकारिता विद्यापीठ 2020 में पहला एमए प्रोग्राम लॉन्च किया, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और आज 2022 में हम लोग हैं। 2021 में जुलाई में 2 डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च हुए थे, पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, और आज जनवरी 2022 में 3 एमए प्रोग्राम और 1 डिप्लोमा प्रोग्राम, इस तरह से 4 एमए प्रोग्राम और 4 डिप्लोमा प्लस 1 डिप्लोमा चल रहा है, 5 डिप्लोमा प्रोग्राम प्लस सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मूक प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम, ओडीएल प्रोग्राम। तो आज के डेट में स्कूल के खाते में या स्कूल के नाम पर जो ये प्रोग्राम आज संचालित हो रहे हैं, इसके पीछे जैसा सारी फैकल्टी कह रही है कि माननीय कुलपति जी का जो मार्गदर्शन था, जो प्रेरणा स्रोत आप रहे और निरंतर हम लोगों को ऊर्जा का संचार करते रहे, और यही कारण है कि हम लोगों ने 2020 से लेकर 2022 के बीच में जितना प्रोग्राम, चाहे एमए प्रोग्राम हो, डिप्लोमा प्रोग्राम हो, सर्टिफिकेट, मूक, ऑनलाइन, ओडीएल, सारी फैकल्टी ने एक टीम वर्क के तहत ये प्रोग्राम बनाया और आज लॉन्च हो रहा है, और आगे भी इसी गति के साथ हम लोग ये करते रहेंगे। और यह सब कुछ आपके उदार और लोकतांत्रिक नेतृत्व के कारण हो पाया, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में आम तौर पर ट्रेंड था कि एक प्रोग्राम को बनाने में 5 से 6 साल, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे रास्ते आसान किए, और उससे ज़्यादा आसान रास्ता हम लोगों के लिए आपने मुहैया कराई। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और आज के अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति जी। आप सबको प्रणाम। आप लोग ने हम सबको आशीर्वाद दिया। आदरणीय जयेश यादव जी, आदरणीय नकवी साहब, आदरणीय जयश्री जी, आलोक वर्मा जी, दीपक गुप्ता जी, और हमारे सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो हमारे फेसबुक और अन्य स्रोतों से अन्य स्थानों पर जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी की ओर से स्कूल को बधाइयाँ। काम तो स्कूल ने किया है, स्कूल के शिक्षकों ने किया है, शंभुनाथ जी के नेतृत्व में लोगों ने काम किया है। उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट और जो ऊर्जा उन्होंने सबके बीच में संप्रेषित किया, उसका परिणाम है। ये कहना कि कुलपति ने किया तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है। काम कोई और करे और कुलपति को क्रेडिट जाए। हाँ, आप लोगों ने जरूर मदद किया है इनपुट्स दे करके, क्योंकि मुझे तो जर्नलिज्म के बारे में कुछ जानते नहीं, केवल यादव जी को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, जेपी यादव जी को। हमारे यहाँ आते रहते हैं और हमारे इस स्कूल को आशीर्वाद भी देते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इसको आसान करने का तरीका भी हमारे साथियों ने खोजा है। क्योंकि जर्नलिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, प्रिंट है, आजकल ब्रॉडकास्ट उसके बाद हुआ, और अब आजकल तो टेलीविजन, इन सब के द्वारा जो गति बढ़ गई है, और नकवी साहब बता भी रहे थे जिस तरह से, हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि एक समय में जब हम लोग को इस तरह से कोई प्रोग्राम करना पड़ता था तो कितनी कॉस्ट आती थी, और आजकल हम लोग कितनी आसानी से बिना किसी पूर्व व्यवस्था के भी इस कार्य को कर लेते हैं। अपने अपने घर से भी हम लोग इस कार्य को कर ले रहे हैं। सुविधा ने हम सबको बहुत मदद की है, टेक्नोलॉजी ने हम सबको बहुत मदद की है, और इसी के कारण से जो हमारे पाठ्यक्रम डेवलपमेंट का प्रोसेस है
उसमें भी गति आई है और हमारे शिक्षकों ने उस गति को पहचान लिया है, उसको अपने में उतारने का प्रयास किया है और जब भी कोर्स डेवलपमेंट की बात आई उसको उन्होंने अंगीकृत करते हुए छात्रों को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे लर्नर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यक्रम बनाए हैं। किसको क्या चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही बात ध्यान में रख करके ये पाठ्यक्रम बने। अगर किसी को डिजिटल मीडिया के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम है, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म के बारे में अलग से प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में अलग प्रोग्राम है, एडवर्टाइजिंग और इंटीग्रल कम्युनिकेशन के बारे में अलग प्रोग्राम है और एक जेनरिक प्रोग्राम भी हमारे पास है। और उस जेनरिक प्रोग्राम को इन्होंने एक नया प्रयास शुरू किया है कि विभिन्न भाषाओं में उनके मटेरियल को बदलने का काम। एमए जर्नलिज्म को इन्होंने हिंदी और तमिल 2 भाषाओं में अनुवादित करके इसी जुलाई 2022 से लोगों को उपलब्ध कराया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर आप देखें तो उसके एक एक बिंदु को इस स्कूल ने अपने जो कार्य है उसमें उतारने का प्रयास किया। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी हमारे यहाँ है, उसके तहत भी एक एक कोर्स में भी वे छात्र प्रवेश ले सकते हैं, उसके तहत भी उनका योगदान है। और किसको क्या चाहिए, अगर जर्नलिज्म का एक जेनरिक डिग्री चाहिए वो भी उपलब्ध है, जर्नलिज्म का कोई स्पेसिफिक एरिया का डिग्री चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। और बदले हुए परिवेश में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि हम अब लोग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उसको पूर्णता दें और पीजी डिप्लोमा दें, पीजी डिग्री दें। और उसके लिए स्कूल ने एक प्रयास और किया है कि सबको पीजी डिग्री का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करके इन कंटेंट्स को दिया है। साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप चाहे तो 1 साल बाद डिप्लोमा ले लें और 2 साल बाद डिग्री ले लें। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसमें हम लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है। टेक्नोलॉजी को कहाँ जोड़ना है ये भी इन्होंने प्रयास किया है, स्किल्स को कहाँ इसमें शामिल करना है ये भी प्रयास किया है। और आपने जो आज बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, चाहे वो नकवी जी हों, चाहे यादव जी हों, चाहे दीपक जी हों, आलोक जी ने, जयश्री जी ने, सब ने कोई ना कोई बात हम लोगों को बताई है। हम लोग निश्चित रूप से उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उसको नोट भी कर रहे हैं और हमारे जो शिक्षक हैं वे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी कारण से उनकी गति आप देखेंगे, जिस गति से वे काम कर रहे हैं और लर्नर सेंट्रिक पूरा अप्रोच उन्होंने बना रखा है। क्योंकि पुराने जमाने में हम लोग शायद इस तरह से बातचीत नहीं करते, उन्होंने नए जमाने में क्या आवश्यकताएं हैं, सारी चीजें मोबाइल पे उपलब्ध हैं, हमारे सारे मटेरियल ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध है, हम लोग वीडियो के द्वारा भी लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं परिवर्तन की, उसको लोगों ने अंगीकृत किया है। हमारे यहाँ स्वयं प्रभा चैनल है, स्वयं प्रभा चैनल के द्वारा भी लोग पहुंच रहे हैं। स्वयं कोर्सेज हैं, स्वयं कोर्सेज में जर्नलिज्म ने अपना योगदान दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंच रहा है। इन लोगों ने ई विद्या भारती में भी अपने कोर्सेज दिए जिसके द्वारा 19 अफ्रीकन देशों में भारत सरकार का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने भी इसको जोड़ने का प्रयास किया। तो जो भी समय की आवश्यकता है, जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है, जो भी तकनीक की आवश्यकता है, जो भी छात्रों की स्पेसिफिक आवश्यकताएं है, उसको ध्यान में रख करके इन्होंने अपने कार्यक्रम बनाए हैं और लोकप्रिय भी हो रहे हैं। क्योंकि जब मातृभाषा की बात आ रही है तो तुरंत मातृभाषा में शायद ये पहला पाठ्यक्रम है पूरे विश्वविद्यालय में जिसमें उन्होंने एमए में हिंदी के साथ साथ तमिल भाषा में भी एमए का पाठ्यक्रम शुरू किया है। निश्चित रूप से इस गुणवत्तापरक जो इग्नू के कार्यक्रम हैं, अगर वो मातृभाषाओं में भी उपलब्ध होने लगे तो उसका बेहतर ढंग से उपयोग होगा और उसके लिए स्कूल का हर सदस्य बधाई का पात्र है। क्योंकि उनका प्रयास, और शायद इनके स्कूल से मुझे कभी कोई समस्या भी नहीं आई है, काम किए
और केवल मेरे पास ये कहने आते थे कि इसको लॉन्च कराना है सर, और लॉन्च कराने के लिए आप समय दे दीजिए। बाकी सारा काम इन लोगों ने किया है, और उसके बारे में कभी कोई बातें, कभी कोई विवाद, कभी कोई इस तरह की बातें, स्कूल बोर्ड में आप लोगों ने मदद किया है, कंटेंट डेवलपमेंट में आप लोगों ने मदद किया है, और उसके बाद अच्छा कंटेंट आया है, लेकिन इस कंटेंट को हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। इसीलिए बार बार हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, और आप लोगों का बार बार बात सुनना भी चाहते हैं। इससे हम लोग को फायदा होता है। अभी हम लोगों ने हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू किया है पूरे इग्नू ने, और लगभग हर पाठ्यक्रम में हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से स्किल्स हम लोग हर पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं, और ये प्रक्रिया शुरू हो गई। और अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ अप्लाइड बीए के कोर्सेज शुरू किए हैं। उसमें 75% हमारे एकेडमिक कंटेंट हैं, और 25% एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कंटेंट्स हम लोग उसमें समाहित कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण हम लोगों ने अभी बीए उर्दू, जिसके बारे में प्राय लोग सोचते हैं कि उर्दू में क्या अप्लाइड होगा, उर्दू में अप्लाइड नहीं देख रहे हैं हम। उर्दू के विषय को रोजगार परक बनाना चाहते हैं, संस्कृत के विषय को रोजगार परक बनाना चाहते हैं, हिंदी के विषय को रोजगार परक बनाना चाहते हैं। उसके साथ हम फाइनेंस को जोड़ सकते हैं क्या, रिटेलिंग को जोड़ सकते हैं क्या, जो बाजार में जो स्किल्स उपलब्ध है उनको इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण ही संभव हो सका है, और एनएसडीसी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। अभी 2 या 3 दिन पूर्व शायद आपको ज्ञात होगा, और विश्वविद्यालय में बहुत खुशी की बात है कि इस विश्वविद्यालय ने अपने बीए, बीएससी और बीकॉम के कोर्सेज में आर्मी के जो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, उनके साथ एक एमओयू किया है। ये एमओयू 3 तारीख को हुआ है, जिसमें तीनों चीफ के आर्मी के स्टाफ थे, जिसमें उन्होंने अग्निवीरों के लिए, जो 4 साल के लिए वो देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करेंगे, उनको एक शैक्षिक अवसर मिल सके, ग्रेजुएशन का एक अवसर मिल सके, उसके लिए स्किल कम एकेडमिक्स, 50% स्किल्स और 50% एकेडमिक्स, इस तरह का एक जुडिशियस मिक्स का कोर्स डेवलप हुआ है, जो अभी उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा इसी जनवरी सत्र से। तो जहां तक हम लोग भी सोच रहे हैं कि पेपर डिग्री के साथ साथ हम लोग स्किल के भी कंपोनेंट शामिल करें, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जर्नलिज्म का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो स्किल के रूप में अन्य विषयों में, अन्य पाठ्यक्रमों में समाहित हो सके। इस पर भी हमारे सारे शिक्षक लगातार लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो पेपर डिग्रीज ना हो, उसमें स्किल का कंपोनेंट हो, स्किल का कोशंट हो, और उस दिशा में यह विभाग लगातार काम कर रहा है। बधाई शब्द शायद बहुत कम होगा इनके लिए, इनके मेहनतों का इनका जो मेहनत है बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे पास 21 स्कूल हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स जो अभी अच्छा काम कर रहा है, और सारे स्कूल्स को एक दिशा दे रहा है कि हम लोग किस प्रकार से और बेहतर अपने पाठ्यक्रमों को रिवाइज कर सकें, नए पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत कर सकें, और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को बनाए रखें। आपने इस अवसर पर हमारे लिए समय दिया, आदरणीय यादव जी, आदरणीय नकवी जी, जयश्री जी, आलोक जी और दीपक जी, आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी मिलते रहना चाहिए, और आपका मार्गदर्शन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसको हमारे साथी इन पाठ्यक्रमों में शामिल करके उनको और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। स्कूल को पुनः बहुत बहुत बधाई, स्कूल के हर शिक्षक को बधाई, अरुण सेल्वम जी को भी बधाई, जो कहेंगे सर मैं डायरेक्टर हूँ मुझे बधाई दिया नहीं, उनको भी बधाई, सभी को बधाई। 4 जो हमारे कोर्स बनाने वाले उनको भी बधाई, और जो बाकी कोर्स बना चुके हैं और अभी यहाँ पर मदद के लिए आए हैं, शिखा जी हैं और देवल साहब हैं, इन लोगों ने शुरुआत में बहुत काम किया हुआ है और अभी भी काम कर रहे हैं। तो मतलब ये 4 पाठ्यक्रम ही नहीं है और कई पाठ्यक्रम चल रहे हैं, हर एक के कोर्स कोऑर्डिनेशन अलग अलग बटे हुए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, और अच्छी टीम बनाने के लिए पूरे स्कूल को बधाई। माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन, सहयोग और प्रेरणा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं स्कूल की तरफ से, अपनी तरफ से। और मैं
धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने कलीग डॉक्टर शिखा राय जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के आदरणीय अतिथि गण और हम माननीय कुलपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लगातार यूट्यूब और फेसबुक से हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए थे और उनके कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग देख रहे थे, उनको रिप्लाई कर रहे थे। सो इट वाज वेरी एनकरेजिंग। हमारे बहुत सारे आरती से भी लोग हमारे साथ जुड़े। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। Thank you, Padmini, for the added input, and thank you, Ramesh ji. The school is fortunate to be in a position to take the policy implementation of Government of India forward in accordance with the needs of the youth of the country through its programs. We are all more fortunate to have the blessings of visionaries like our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, and stalwarts like Professor J.S. Yadav, Shri Kamar Wahid Naqvi, Professor Jayashree Jethwani, Shri Alok Verma, and Dr. Deepak Gupta. The school thanks you all very much for encouraging us, motivating us, and standing strong behind us. We know you have our back, and that's what gives us the confidence to take new plunges in media education. This is what sets IGNOU, a mega university, apart from all the other universities of the country. We will try our best to impart the knowledge that we are capable of providing to as many deserving hands as possible. Thank you all very much for joining us this evening. Have a great evening. Namaskar. Thank you so much. So with the permission of Honorable Vice Chancellor, sir, now I formally end this virtual event. Thank you for joining. Thank you. आप सबको नमस्कार। राधे जी, दीपक जी, जयश्री जी, नमस्कार। नमस्कार।